Very good morning, students. In today's class, we are going to cover chapter 6 from your civics book, which talks about media. In this chapter, we will be focusing and understanding what is the meaning of media, what are the various technologies media world is today having. We will understand the relationship between media and money. And lastly, but very important, we will understand the relationship between media and democracy. How media is helping democracy, and in what ways democracy is what kind of importance media has in the democracy. So actually, when we talk about word media, it is like a medium of communication. So when I talk about media, several ways of media come cross must cross your mind. That is radio, TV, newspaper, internet, social media. All these things might be crossing your mind. So let's learn more about media and its importance, its technology it is using nowadays, and what importance it has in a life of a citizen, or what importance it has in the scenario when we see the political, economical scenarios, what importance media has. Let's understand this in this particular chapter. So, media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call or to the evening news on TV can be called media. Okay. जिस भी चीज़ से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को सोसाइटी में पर्सनली, वो सब मीडिया के ही फॉर्म्स कहलाए जाएंगे. सो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, right? And nowadays internet, your Facebooks, your Twitter, everything are form of media that reaches million of peoples or the masses across a country and across the world, and this they are called mass media. तो मीडिया के अंदर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपका पर्सनल भी हो सकता है और मास भी हो जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन? लाइक व्हेन वी वांट टू टॉक या टू एड्रेस large number of people. It can be across the state, across the country, across the world. So that is called mass communication, or mass communication के लिए we use mass media. And this TV, radio, और फेसबुक, आपका ट्विटर या सॉरी आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब जो हैं वो मास मीडिया के forms हैं, mediums हैं, right? So let us understand nowadays what is media and what technology are being used. क्योंकि मीडिया भी जो है बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका है उसका यूजेस हमारी लाइफ में. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. ये बुक जब लिखी गई थी, at that moment of time, cable television was a new revolution. When we were kids, cable was a new revolution, and it has like opened new horizon for us as a kid. I remember कि केबल के आने से कितना एक्सेस हो गया था. अर्लियर वी वर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दूरदर्शन या लोकल चैनल, जो हमारे जो लोकल स्टेट चैनल होते थे उन्हीं के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी. टाइम था, लिमिटेड टाइम था ब्रॉडकास्टिंग का, न्यूज़ का अपना टाइम था, सॉन्ग्स का अपना एक पर्टिकुलर टाइम था, एंड मूवीज़ के लिमिटेड डेज थे. इट वॉज नॉट लाइक in our childhood, it was not like कि आपने flip किया कोई भी channel and every 24/7 it is running. No, it was not like this. We eagerly used to wait for Sundays कि हमारा वो serial Sunday को ही telecast होगा. So cable television हम लोगों के टाइम का एक जिसको आप कह सकते हो revolution थी in the world of media. But आपके लिए जो है वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है. अब आपके जो हैं वो आपके चीज़ें, आपके इंटरनेट हमारे लिए बहुत न्यू था और बहुत बहुत ही ज़्यादा हमें कैफ़ेज़ में जाके इंटरनेट यूज़ करना पड़ता था. इतना ज़्यादा एसेसिबल नहीं था, बट अब तो हर घर में हर बच्चे के पास एक्सेस है इंटरनेट का. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. Newspaper, television and radio can reach millions of people because they use certain technology.
We also tend to discuss newspaper and magazine as the print media, जो छप के आपके पास आपके घरों में पहुंचता है, जैसे मैगजीन और न्यूज़पेपर, उसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि ऐसे डिवाइसेस पे चलता है जो कि रन किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, लाइक टीवी एंड आपका रेडियो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं. व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? एज आई टोल्ड यू, बिकॉज दीज आर इन प्रिंटेड फॉर्म. इनकी जो है आपको पेपर पे प्रिंट मिलते हैं, इसलिए इनको प्रिंट मीडिया कहते हैं. एज यू रीड फर्दर, you will find that this naming is related to the different technology that these media use. The following photographs will give you a sense of the way in which technology that mass media uses has changed over years and continues to change. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, हमारे टाइम में जो प्रोमिनेंट जो मीडिया थे वो न्यूज़पेपर था या मैगजीन्स थी, बुक्स थी, और केबल हमारे लिए एक रेवोल्यूशन था कि हमें किसी भी चैनल से किसी भी चीज़ का एंटरटेनमेंट या न्यूज़ या इवन डिस्कवरी वाले जैसे चैनल से हमारे को जो था एक्सेस मिलने लग गया था. बट आपके लिए तो एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स. यू कैन जस्ट गूगल आउट एनीथिंग, राइट? और उसका कई बार आप लोग गलत यूज़ भी करते हैं. आप अपनी बुक्स को पढ़ने की जगह सिर्फ और सिर्फ गूगल ही करके असाइनमेंट्स कर देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. I remember जब हम लोग अपने टाइम में, जब when computer was introduced, when I was a kid, and सबसे पहले हमें पेंट ब्रश सिखाया गया. पेंट ब्रश भी नहीं था, फॉक्स प्रो और ये सबसे चीज़ें थी हमारे में. लोगो चलता था हमारे के अंदर, और हमें जो था पिक्चर्स बहुत ही लिमिटेड होती थी जो कि हम अपने पीपीटीज वगैरह में गैलरी में से इंपोर्ट करते थे. लेकिन अब आप कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, वट एवर प्रोजेक्ट आप बनाना चाह सकते हैं. यू हैव लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू लाइक मेक योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. सो दिस इज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी. अर्लियर जब न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो रिस्ट्रिक्टेड था. और जैसे जैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो आज ऐसे पीपीटीज आप बना सकते हैं घर बैठ के कि जो मार्वलस कहलाती हैं. So it also changes the way in which we think about our life. For example, today it is quite difficult for us to think of our life without television. Television has enabled us to think of ourselves as member of a larger globe world. टेलीविजन इमेजेस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स. आप सब ये जानते हैं. और आपको एक वर्ल्ड के कॉर्नर में बैठे हुए दूसरे कॉर्नर में वर्ल्ड के क्या हो रहा है इजीली आपको एसेसेबल हो सकता है. ठीक है, मतलब जितने भी कार्टून्स, मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. We can now be sitting in Chennai or Jammu, or we can see image of storm that has hit the coast of Florida and United States. तो टेलीविजन था एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसने बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशन किया था. ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब जो था, वर्ल्ड जो था, बहुत ज़्यादा असेसिबल हो गया था. और अब उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है. एक मिनट के अंदर न्यूज़ जो है, मिनट भी बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपके पास न्यूज़ फ्लैश हो जाती है. तो दिस इज, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस, दैट हु आर द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन दिस? कैसे, क्या चीज़ है जो कि इतनी जल्दी हमारे पास ये सब चीज़ें आ रही हैं, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप देखिए एंशिएंट टाइम में कैसे कंप्यूटर्स थे. आप सबके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है. आप देख सकते हैं जॉन एल ब्रेड ने जब अपने प्रेचेस किए थे, इन्वेंशन की थी टेलीविज़न की, तो वो कैसा टेलीविज़न होता था. मम्मी पापा से पूछिए कैसे मतलब कैसे एंटीना लगा के हम लोग उस टाइम पे होता था. कैसे मर्फी का रेडियो जो था उसके लिए भी आपको लाइसेंस इशू कराना पड़ता था. आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड फादर्स टाइम पीरियड, कि उनको रेडियो के लिए भी लाइसेंस लगता था. तो डिस्कस ऑल दिस थिंग विद योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू विल सी, यू विल इवेल्युएट लाइक हाउ द टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज्ड ओवर द फ्यू डेकेड्स. तो नेक्स्ट इज मीडिया एंड मनी.
लेट्स टॉक अबाउट मीडिया एंड मनी। आपको मैंने ये पूछा, आप सब कुछ आपके पास एक्सेस है, आप उसके लिए इंटरनेट पैकेज पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो गूगल पोर्टल्स हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन सब में भी तो पैसा लगता है। The different technology that mass media use are expensive, rather very expensive. Just think about the TV studio in which the newspaper sits. It has lights, camera, sound, recorders, transmission, satellites. कितना मनी लगता है ना इनका, आपको पता है? कितना कितना एयर करने के लिए, एक प्रोग्राम को एयर करने के लिए कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है। एक जो न्यूज़पेपर प्रिंट होके आपके घर आता है, उसके पीछे क्या क्या होता है, रिपोर्टर्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर उसको प्रिंट किया जाता है, हैवी मशीनरीज होती हैं जो उसकी प्रिंटिंग करती हैं, पेपर का यूज़ होता है, तो कितना कुछ चलता है ना एक चीज़ के पीछे। रेडियो है तो रेडियो जॉकीज को एम्प्लॉय करना, वो जो न्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो पूरा साउंड ट्रैक का सिस्टम लगा हुआ है, वो सबके पीछे मनी चाहिए, बिकॉज कोई भी सिस्टम, कोई भी सेटअप होगा, उसके लिए मनी चाहिए। सो द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर वेरी एक्सपेंसिव। उनके लिए सैटेलाइट्स, ट्रांसमिशन, रिकॉर्डर, स्टूडियो, एंकर्स, इन सब में पैसा जाता है। लाइक अगर हम एक न्यूज़ स्टूडियो की बात करें, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू पेड, but also the number of people who help put the broadcast together. This includes those who look after the camera and lights. Also, as you read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money has to be spent on getting the latest technology. राइट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक बार आपने सेटअप लगा दिया वही चलता रहा, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक एवर चेंजिंग, वेरी फास्टली चेंजिंग फील्ड। तो इसके अंदर जो लेटेस्ट आएगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस रेस के अंदर। Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, more TV channels and newspapers are part of big business houses. Mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, एवरीथिंग। लाइक आप अपना फेवरेट टीवी जब देखते हैं, जब वो एयर होता है तो बीच में कितने जल्दी जल्दी एड्स आती है ना, कितनी सारी एड्स आती हैं। तो एक्चुअली जो मीडिया स्पेंड कर रहा है वो इन्हीं एड्स के थ्रू जो है, इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो अर्न कर रहा है। किसी भी पॉपुलर सीरियल के अंदर कोई भी न्यूज़ फ्लैश होती है, दैट मीन्स कि वो जो न्यूज़ फ्लैश करा रहा है, जो उसका प्रोड्यूसर है, वो मीडिया को पेमेंट कर रहा है, मनी दे रहा है, ताकि उस टाइम पे उसके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं। इवन जब आप गूगल भी करते हो चीज़ों को, न्यूज़ लेते हो, तो कई बार आपको एड्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनकी कॉस्टिंग निकल रही है। वो जो भी इस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, वो पे कर रहे हैं उस मीडिया को। ओके, तो ये जो एडवर्टीजमेंट आती है एक्चुअली सोर्स होती है मास मीडिया की इनकम का, राइट। तो मनी बहुत ज़रूरी है मीडिया के एग्जिस्टेंस के लिए, और मनी जो है, जो लोग स्पेंड कर रहे हैं मनी मीडिया के लिए, वो एक्चुअली बिजनेस गेन कर रहे हैं। तो इंटर रिलेटेड है। इकोनॉमी में मीडिया जो है बहुत ज़्यादा, देखो आप ये चीज़ देखो कि जिनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है वो कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो उनका सेल्स बढ़ रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहे हैं, और उसी प्रॉफिट में से वो और स्पेंड करके और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सो मीडिया एंड मनी सर्कुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग है इन चीज़ों का। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड मीडिया एंड डेमोक्रेसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग दे हैव, वेरी वेरी essential bonding should be there between media and democracy. आपको पता है व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ लाइक एक ऐसी कंट्री जिसमें लोग डिसीजन लेते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करके डिसीजंस लेते हैं। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर मेंटेन करके रखने में मीडिया जो है बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, और इतना रिस्पेक्टेबल, इतना पावरफुल पोजीशन होता है मीडिया का डेमोक्रेसी के अंदर कि कई बार इसको कई बार नहीं, नॉर्मली इसको फोर्थ एस्टेट बोला जाता है। फोर्थ एस्टेट बोला जाता है इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। लोग जो हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और मीडिया उस चीज़ के अंदर हेल्प करता है।
डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। तो लोग कितना खुश है उनके डिसीजन से, उसका फीडबैक, और हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक जो है एक्सचेंज। मीडिया, व्हाट इज मीडिया? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, like learn how government works, and often they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing public protest, starting a signature campaign, and asking the government to rethink its programming. अगर उनको कुछ भी गड़बड़ मीडिया के थ्रू पता लगती है गवर्नमेंट कर रही है, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू वो लोग अवेयर रहते हैं, राइट। Given the role that media plays in providing information, it is important that the information be balanced. अब ये मीडिया के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर जो है वो फेयर रिपोर्टिंग करें, राइट। अदरवाइज जो है, जो चीज़ मीडिया के अंदर बहुत पावर होती है, वो किसी भी चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से रिप्रेजेंट कर सकती है। अभी हमने हाथरस का जो केस था उसमें देखा कि कैसे डिफरेंट मीडिया चैनल्स डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो गर्ल की गलती बता रहे थे, कुछ लोग जो है वो कल्प्रिट्स जो एक्यूज थे उनकी गलती बता रहे थे। तो क्लैशेस थे उस चीज के अंदर। तो हर चैनल अपनी तरफ से कर रहा है। देखो आपकी बुक के अंदर देयर इज एन एग्जाम्पल विच इज शोइंग कि एक ही प्रॉब्लम को कैसे कोई भी मीडिया हाउस दो एंगल से पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर आपका लाइक है क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। मतलब इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि वॉयलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि वॉयलेंट दिखा रहे हैं। जो जिनकी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो शहर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज गवर्नमेंट का ये जो है, ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रादर हार्शली, द प्रोटेस्टर हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। यानी कि इस पीस ऑफ न्यूज के अंदर गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है मीडिया की, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया डेली क्या रिपोर्ट कर रही है? क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटी रेजिडेंस एरिया इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। ऑन मंडे, thousands of factory owners and workers took to street to strongly protest this closure. They said that their livelihood would be lost. They said that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in the residential area. अब ये कैसे न्यूज, इंडियन डेली कैसे न्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट को अगर पहले ही बंद करनी थी तो पहले इशू ही क्यों किया, वो गवर्नमेंट की गलती बता रहा है। और जबकि जो न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रही थी उसके अंदर वो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको गलत कह रही थी। तो मीडिया के अंदर बहुत ताकत होती है, वो किसी भी चीज को किसी भी तरह से किसी भी एंगल से प्रेजेंट कर सकती है, राइट। तो दिस इज अल्टीमेटली लोगों को बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होके मीडिया क्या न्यूज है, क्या मैटर है, उस पर एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हुआ था, अभी पीछे बेंगलुरु के अंदर जो राइट्स हुए थे उसके अंदर क्या हुआ था कि एक अब्सर्ड गॉड पिक्चर की वजह से पूरा सिटी बर्न हो गया था। तो लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ से चीज शुरू हुई, क्यों हुई, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अनटिल एंड अनलेस वो करप्टेड ना हो खुद, राइट। उस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द फैक्ट इज दैट इफ यू हैव रेड इधर न्यूज़पेपर, ऊपर के एग्जाम्पल पे हम आते हैं तो वो वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रही है। इफ यू रीड न्यूज ऑफ इंडिया यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज नॉइसेंस, जो कि शहर में दंगे कर रहे हैं या शहर को गलत कर रहे हैं। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because of a lot of livelihoods would be lost if the factories close, because the relocation efforts have not been adequate.
नीदर ऑफ दी स्टोरी इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, क्योंकि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जो होती है वो हर पहलू को डिस्कस करती है, डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस रिपोर्टिंग करना, लेकिन कई बार जो है मीडिया बैलेंस्ड रिपोर्टिंग नहीं करती, उसके पीछे भी कई फैक्टर्स होते हैं। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट नीड टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ऐसा नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट है वो अपनी तारीफ करते करते ये मीडिया को सारा दिन लगाई रखे उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। एज यू रीड अबव, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स that we take action as citizens. So it is important that the information is reliable and not biased. However, the reality कुछ और ही शो करती है कि मीडिया कई बार इंडिपेंडेंट नहीं होती। दो रीजन है। एक, first is the control that the government has on the media. When the government prevents either a news item or scene from a movie or lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred as censorship. जब गवर्नमेंट जो है मीडिया की किसी चीज को या किसी सॉन्ग के पार्ट को, मूवी के सीन को जब नहीं दिखाना चाहती है और उसको कट कर देती है, दैट्स द सेंसरशिप। देयर हैज बीन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। द वर्स्ट ऑफ दिस वाज इन इमरजेंसी, जो कि 1975 से लेकर 1972 तक थी। उसमें मीडिया की सारी पावर्स थी, वो पावर्स उससे एक्सट्रैक्ट कर ली गई थी। सो मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक वो फ्री नहीं होता, उसका एक्सप्रेशन फ्री नहीं होता, तब तक उसके जो रियल रिजल्ट्स हैं वो नहीं निकल के आते, राइट। While the government does continue to censor film, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced news story. The reason for this are complicated. People who research the media have said that this happened because business houses control करते हैं मीडिया को। अब business houses जैसा चाहते हैं वो वैसा मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि वो मनी प्रोवाइडर है, वो उनका सोर्स, खर्चा जो है वो वहीं से पूरा हो रहा है। तो इस वजह से कई बार वो लोग भी अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं। और मीडिया कई बार इंडिपेंडेंट जो है, अपने क्लोज एसोसिएशन जो बिजनेस हाउसेस हैं उसकी वजह से भी वो जो है अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करता। तो ये सब रियलिटी है, जबकि मीडिया को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और लोगों के आगे ट्रू पिक्चर रखनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो सही डिसीजंस ले सकें और कोई भी इल इफेक्ट जो है वो उन पर ना आए। Now, setting agendas. The media also play an important role in deciding what stories to focus on and therefore decide on what is newsworthy, right? किस चीज को कितनी कवरेज देनी है, क्या करना है, क्या लोगों का इस टाइम इंटरेस्ट है, वो एजेंडा सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज, बट इफ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। So, by focusing on particular issues, the media influences our thought, feelings and actions and bring those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our life and in shaping our thought, it is commonly said that media sets the agenda. मीडिया हमारा ब्रेन जो है उसी तरह डाइवर्ट कर सकती है, एजेंडा सेट कर सकती है। हमारा मतलब आप सोचो, एक ही चीज बार बार फ्लैश हो रही है तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो मीडिया जो है वो एजेंडास भी सेट करती है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू द अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। दे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। आपने देखा ना, जो भी न्यूज फ्लैश होती है हम कॉमन पीपल उसी को डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी के इल इफेक्ट्स करते हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया जो है वो एजेंडास को सेट करती है, मीडिया जो है वो एजेंडास को सेट करती है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल, राइट। सो दे डिड this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe.
तो मतलब किसी भी इंस्टेंस पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आपका ध्यान ला सकती है, और मीडिया ही आपका किसी भी चीज़ से जो है ध्यान हटा भी सकती है। तो एक ही चीज़ को फॉलो करके और व्यू बना लेना, वो चीज़ गलत है। जब आप किसी भी न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को देखो, आप डिफरेंट लिटरेचर्स को उसके बारे में पढ़ो, तभी आपको जो है ब्रॉडर व्यू मिलता है, एंड देन गेट टू ए कंक्लूजन। बिकॉज ये मनी मैटर्स की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से कई बार मीडिया जो है वो एक ही तरह की रिपोर्टिंग करती है। तो आपको एज अ सिटीजन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वेरियस जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, और फिर किसी चीज़ के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर आए। सो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या लेफ्ट आउट हैं, देखते हैं ना आप, वेरियस चैनल्स हैं, और कई बार कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखती है हमें चैनल्स के बीच में, क्योंकि वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस एंड वेरी क्लोज रिलेशनशिप इन डेमोक्रेसी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ आपको ध्यान भटका रही है। कई बार जो चीज़, जो मुद्दे जो जनता की नज़रों से छुपते हैं, उनको स्ट्रिंग ऑपरेशंस करके पूरा का पूरा मीडिया जो है वो जनता के सामने ले आती है, पब्लिक के आगे ले आती है, और पब्लिक को अपना एक व्यू फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और यही सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर लाइव क्लास ऑल्सो। सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, just note down your doubts, and I will appreciate if you come with your own suggestions, your own views. We will be discussing all this thing in detail in your live class, and I will be providing you question answers also, which you need to note down in your notebooks. So this was all we are supposed to cover in this chapter, and whatever your doubts, we will discuss that in the doubt class. From my end, this is all for this chapter. Bye for now.